Hello everybody, this is Dr. Nurbat Shah from University of Engineering and Technology Peshawar. आज की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करना है जो 2022 का एमडीके टेस्ट हुआ था। उसमें लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सॉल्व करके उनको एक्सप्लेन करना है। So I'll request you to please subscribe to my channel so that you may get notifications for when the new video is uploaded. Okay, so let's talk about some questions. इसमें obviously questions जो है I think 7 questions हैं 22 टेस्ट में MDCAT के टेस्ट में, ठीक है। So I'll be talking about the solution and the explanation as well. So the first question that is given is you need to read the passage and then we have to answer the given questions. Okay. So the passage is given as people say that certain cancers are protected against tomatoes and proceed tomatoes product, okay, and like tomato sauce and canned tomatoes. Okay, lycopene has been found to be responsible for tomatoes and tomato products' ability to prevent certain cancer. And then lycopene is the vivid red pigment that gives a red hue to tomatoes and other red fruits. The processed tomatoes are found to have a more lycopene. Tomato paste contains 4 times as much lycopene as fresh tomatoes do, because lycopene is strongly linked to vegetables fiber and soluble in water. Further, oil helps in absorption of lycopene because it is a fat soluble substance. So you need to read this passage carefully, and then you have to go for the questions. Okay. So the question 194 in that test is it can be understood from the passage that is for is lycopene intake is concerned. Okay, that's the question statement is given in the test and in the MDCAT paper. So the options are given. It is a pigment which is solved quickly in water and juice. Lycopene hardly offers any protection against cancer. Tomato products contains high concentrations of lycopene and fat. There is a correlation between the lycopene consumption and the prevention of some cancer types. अच्छा, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक पैराग्राफ या पैसेज गिवन होता है, तो उसमें इट्स बेटर कि आप पहले उस पैराग्राफ को या उस पैसेज को समझ लें, जिसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम इस पैराग्राफ को ब्रेकआउट करेंगे. The passage is break down into 4 parts. One is जिसमें बात हुई है cancer protection because of lycopene. The second one is what are the properties of lycopene. ठीक है. और जो processed tomatoes हैं उसमें lycopene के क्या contents हैं, और इसके बाद फिर lycopene की जो absorption property है उसके बारे में बात हुई है इस पूरे पैराग्राफ में या टेक्स्ट में. राइट, तो आप इफ़ इट्स बेटर कि आप उसको, ज़रूरी नहीं कि आप इसको दोबारा लिख लें. मतलब यह है कि अगर आप वापस इधर जाएं तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना. तो आप उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे भी. ओके, यहाँ से कर दिया आपने, यहाँ से कर दिया आपने. डिफरेंट कलर हाईलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं, भाई ये वाला पार्ट ये कह रहा है, ठीक है. इट कंटेन्स 4 टाइम्स एज मच lycopene एज फ्रेश टोमेटोज़, यहाँ पे बात हुई है. फिर अगेन इसमें यह है कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है इसमें, वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको वहाँ से अलग करने होते हैं, फिर उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो सी दैट ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि सर्टन कैंसर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बाय टोमेटो and processed tomato products like tomato sauce and canned tomatoes. Lycopene is responsible for this protection and so on. तो आप पहले ये अगर थोड़ा सा इसको जो पैसेज है उसको ब्रेक डाउन करें, इसको स्मॉल पैराग्राफ में डिवाइड करें, स्मॉल जो उसकी करेक्टरिस्टिक है उसमें डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से फिर आप आंसर्स इजीली दे सकते हैं. ओके जी, सो ऑप्शन ए, इज इट करेक्ट?
So the answer is obviously incorrect in this case, because why is incorrect? The passage says that lycopene is fat soluble, not water soluble. ओके, वो जो है वो फेट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज द पैसेज सजेस्ट दैट lycopene डज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, उसमें गिवन है कि वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन वो करता है, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन में है वो अलग कुछ कह रहा है। थर्ड जो है, इट इज़ पार्शली करेक्ट बट नॉट द बेस्ट चॉइस इन दिस केस। The passage mentioned that lycopene is fat soluble and that processed tomato have more lycopene. So it doesn't explicitly state that tomato products contains high concentration of fats. Okay, so we are left with only option D. So the correct answer will be option D, because the passage implies that there is a correlation between lycopene consumption, right, from tomatoes and processed tomato products and the prevention of certain कैंसर केसेस। ठीक है ना, तो अगर आप ये वन बाय वन सेंटेंस को देख लें, जो ब्रेक डाउन आपने किया वहाँ पे देख लें, तो वहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, बस उसका स्टेटमेंट सिंपल होते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट उसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा, बिकॉज पैराग्राफ इज अ बिट थोड़ा सा बड़ा होता है जो पैसेज होता है, और फिर उससे इन क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, so the correct answer in this case is what? That is option D, which is given as there is a correlation between the lycopene consumption and the prevention of some cancer types. Okay, then the next questions 195, 196 and 197. These are three questions, okay, which are related to the following passage or the following message or whatever you call it. So you have to read the passage below and then answer the questions, these three questions, 95, 96, 97. So this passage is for these three questions, okay. So what is it? The water resources of our country are very much underutilized. The main reason behind this is a lack of capital and technology. A large portion of our water resources is wasted due to floods, unwise use of water for irrigation and domestic use. We can make full use of our water resources by building dams and rivers, and through awareness campaigns among people not to waste water resources. So that is the passage given, and then you have to answer these questions 195, 196, and 197. So the first question is building of dams is an essential step in the conservation of water resources. Okay, so in this case you'll be asked whether this statement is true, absolutely true, or partially true, etc. Some options will be given, okay, and then you have to correct that. You have to pick the correct options, right? अच्छा, अब इस पैसेज को देखते हुए और इस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने देखना ये है कि क्या वाकई जो बिल्डिंग है उनको बनाना ज़रूरी है टू टू ऑब्वियसली प्रिजर्व और टू कंजर्व द वाटर। अच्छा, अब ध्यान में रख लें कि अगर हम जनरल बात करते हैं तो ये बात तो ठीक है, बिकॉज अगर हम डैम्स को बना रहे हैं तो इस केस में वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व हो जाएंगे। लेकिन क्या यही बात हम पैसेज में भी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये दो चीज़ें आपके जहन में रखनी होती हैं कि क्या हम बात जो कर रहे हैं वो अपने कंसेप्ट से कर रहे हैं, अपने नॉलेज से कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है। आपने अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए इसको आपने आंसर नहीं करना, जबकि आपने क्या करना होता है, आपने इसी पैसेज के अंदर जो लिखा गया है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनको आपने यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सो द ऑप्शन ई इज गिवन एज डेफिनेटली ट्रू, probably true, data is inadequate, and option D is probably false. ओके, तो अगर आप देखें तो इसमें अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, अगर आपको ये जो पार्ट है फ्रॉम हियर टू हियर, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने इसको ब्रेक डाउन करना होता है, फिर इसके बाद हम करेंगे। सो वी कैन मेक फुल यूज़ ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग डैम्स, सी, ठीक है, एंड रिवर्स एंड थ्रू अवेयरनेस कैंपेन। सो ऑब्वियसली इट्स अ एसेंशियल पार्ट कि हम इसमें क्या करें, बिल्डिंग्स को हम सॉरी डैम्स को हम बिल्ड कर दें। ठीक है, तो बात वही है कि अगर हम पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज,
The passage states that the water resources of the country are very much underutilized. The main reasons for this underutilization are a lack of capital and technology. A large portion of water resources is wasted due to floods, unwise use of irrigation, and domestic use. And solutions for full utilization is what the passage suggests, that full use of water resources can be achieved by building dams and rivers, conducting awareness campaigns to prevent water वेस्टेज। तो देखिए ये एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है कि आप अगर पहले उस पूरे पैसेज को क्या कर दें, डिवाइड कर दें जितने भी पॉसिबल है, कम से कम अपनी कोशिश करने है कि वो कम से कम स्मॉल पैराग्राफ में उनको आप डिवाइड कर सकें और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को फिर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं टू आंसर द क्वेश्चन। सो द पैसेज इज एक्सप्लिसिटली मेंशन, अगर आप देखिए इसमें तो इसमें कहा कि बिल्डिंग डैम एंड रिवर्स इन द थर्ड वन, ठीक है। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वी टॉक अबाउट यूटिलाइजेशन एंड दैट्स इन थर्ड ऑप्शन। सो बिल्डिंग डैम्स इज वन ऑफ द सजेस्टेड मेथड फॉर मेकिंग फुल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। So, given this clear statement, we can conclude that building of dams is considered as an essential step according to the passage. So, the correct answer is what? That is option A, and it's a definitely true statement. Okay. For the next question, it says that occurrence of floods aid to the water resources. Okay. So, again, it's a definitely true, probably true, probably false, and definitely false. Okay. तो अगर देखना है कि ये जो अक्रेंस ऑफ फ्लड्स हैं, ठीक है ना, तो इसको भी हम वाटर रिसोर्सेज के तौर पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो आपने अगेन देखना ये है कि क्या वाकई में स्टेटमेंट ऐसा है कि नहीं है। सो द पैसेज मेंशंस दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज वेस्टेड ड्यू टू फ्लड्स। So it does not state or simply imply that floods aid to the water resources. Instead, floods are listed as a cause of water wastage. ठीक है ना, तो इस तरह से कोई भी बात मेंशन नहीं है पैसेज के अंदर कि भाई जो हमारे पास फ्लड्स आ रहे हैं उनको भी हम एज अ वाटर रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि ये बात हुई है कि मोस्टली जो वाटर है दैट इज़ बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। सो इसी इट्स अ डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात जो है उसमें नहीं हुई है। ठीक है, जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि इट्स definitely false statement. That means option D in this case is the correct answer. Okay, अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ, and it states that the country does not have enough funds to develop water resources. अब अगेन देखिए इसके इस क्वेश्चन के लिए भी आपको दोबारा वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती जो हम ब्रेक डाउन कर रहे थे पैसेज की, वहीं से हमारे पास ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आपको नज़र आ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट ने या कैपिटल ने कोई वो नहीं बनाई हुई है, मतलब डैम्स नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं। तो एनीवे डेफिनेटली ट्रू, यस वो ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉबेबली ट्रू, और डाटा इज इनएडिक्वेट, और ऑप्शन डी दैट इज प्रॉबेबली फॉल्स। ओके, सो आई थिंक मैंने थोड़ा सा इशारा आपको दे दिया कि द पैसेज एक्सप्रेस स्टेट दैट द मेन रीजन फॉर द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अ लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। दिस डायरेक्टली implies that the country does not have enough funds to develop water resources. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ये बात हुई है कि मतलब डायरेक्ट तो ये नहीं कहा गया कि भाई रिसोर्स कम है, लेकिन इस मूवी को उन्होंने नहीं बनाया इस तरह से, तो इट वाज बिकॉज ऑफ द lack of capital. Capital basically means funds. So the correct answer is what? That is option A, because this statement is true. Okay, so ये जो तीन questions थे 195, 196, 197, they were based on the passage given. तो आपने पहले उसी पैसेज को डिवाइड करना होता है तीन ग्रुप्स में, चार ग्रुप्स में, डिपेंड करता है, कोशिश करें कि कम से कम उसको आपने उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है कम से कम स्टेटमेंट्स में। ठीक है, बिकॉज अगर दोबारा बड़े बड़े छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बना दें तो अब फिर तो वही चीज़ बन जाती है, तो हमें कम से कम उसको कन्वर्ट करना, कम से कम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। Okay, ji, in question 198, it says that in a certain language, remote is coded as ROTME, you may call it ROTME. Which word would be coded as PNIICC? Right?
अब आपने ये नहीं देखना है कि ये तो जो अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं उससे या इसी दैट इन अल्फ़ाबेट्स को रोटेट किया गया है, एक्सचेंज किया गया इस पोजीशन को। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि भाई इज़ इट पेनकेक, इट्स पेनिकेक, इट्स पिकनिक और मे बी पिकिन। अच्छा, अब आप इसको नहीं देखेंगे कि भाई द वर्ड इज़ पिकनिक समथिंग, तो एस वाई इसका अगर हम इस तरह चेंज कर रहे हैं, आपने इस रूल को समझना है। तो अगर आप देख लें इन दोनों में यहाँ पे जो आर है और इसका जो आर है, दे आर एट द सेम पोजीशन। द सेम थिंग जो ई है वो भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अच्छा, अब रह गए हमारे पास ये बाकी बीच में 4 वाले, ये 4 रह गए, तो हमने इनको आपस में लिंक करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो इन दोनों में से ये ओ टी और ये ई एम, ओके, ओ टी एंड ई एम, तो यहाँ पर जो ओ टी था एज अ ग्रुप वो सेकंड आ रहा है, वेयर एज एम जो है वो फर्स्ट आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट था इट इज़ बीन गॉन टू द सेकंड पोजीशन, और जो सेकंड पोजीशन ओ टी था वो पहले आ गया है। तो अगर हम इसी रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पर इस ग्रुप के लिए भी, ये जो हमारे पास आता है फॉर दिस वन, अब देखिए इसमें हम कह रहे हैं कि भाई पहला जो P है वो और जो C है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, और ये जो ग्रुप था सेकंड वाला ये बेसिकली फर्स्ट से आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम IC को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों जो रह गए NI उनको हम इसके बाद लेके जाएंगे। सो यू सी द वर्ड इज बीन मेड ऑफ पिकनिक। So the correct answer is what? That is option C. I hope it's clear to everybody. If not, then obviously you can just drop a message in comments. I would explain it again for you. Okay, ji, 199 question is stating that 5 bags are lying in a pile, one above the other. If A is above B, C is above D, but below E, and D is above A, which bag is in the middle? That's EDAB. कौन सा इसमें जो बेग होगा वो क्या होगा, वो मिडल में आएगा। अच्छा, अब पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, हम वन बाय वन अगेन इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इफ़ ए इज़ अबाव, जो ए हमारे पास बॉक्स है दैट इज़ अबाव बी, ठीक है, यानी ए जो है वो बी के अबाव है। तो अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होगा इस तरीके का, बिकॉज ए इज़ अबाव बी। अच्छा, सी इज़ अबाव डी बट बिलो ई, एंड डी इज़ अबाव वेयर, डी इज़ अबाव ए। इसका मतलब यह है कि डी जो है वो ए के ऊपर आएगा, और साथ में ये है कि सी जो है वो डी से ऊपर है, ठीक है, बट ई से नीचे है। आप देख सकते हैं कि बी ए जो है, अब दोबारा अगर आप इसको देख लें, सो ए इन दिस केस इज अबव बी, राइट, सी इज अबव डी बट बिलो ई, इसका मतलब है कि ई यहाँ पे होगा, और डी जो है वो अबव ए भी है। इसका मतलब है कि डी यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे नहीं हो सकता। So which term or which bag is in the middle? Okay, so that is D. So D is in the middle of the of the pile. Okay, so the solution will be in this form. You see, E C D A B. So the correct answer is D. Option B is the correct answer. ज़हन में रख लें, D जो है वो वही बॉक्स है, और जो ऑप्शन B है वो इस केस में करेक्ट आंसर है, बिकॉज D जो है वहाँ पे लाई कर रहा है। Okay, ji, let's talk about a sequence question now. Find the term which does not fit into the sequence. That is 1CV, then we have 5FU, then 9IT, 15LF,
एंड 17 OR। तो इसमें से एक टर्म ऐसा है जो कि सीक्वेंस में फिट नहीं हो रहा। तो मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो वी से 17 OR, 5 FU, 9 IT और 15 LS। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे इसमें एक पैटर्न बन रहा है। हम पहले एक नंबर्स को लेंगे। तो फर्स्ट नंबर, द नंबर्स आर 1। हम सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, इस सीक्वेंस पर से ही बात करेंगे। इसी ये 1 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 9 है, 15 एंड देन 17। सो व्हाट्स द पैटर्न? यहाँ पे जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? The difference between 1 and 5 is 4. The 5 in 9 is what? The difference is 4. Okay. Then we have the difference between these two is 6. Then we should have 6 again. लेकिन यहाँ पे 17 आ गया है। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, इधर भी 4 का डिफरेंस है, और इसके बाद फिर जो डिफरेंस आ गया है 9 और 15 के बीच में, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 6। तो अगला भी जो डिफरेंस है ये 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 21 होना चाहिए था। एनीवे, बाकी जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये C है। अगला जो है C आ रहा है, C के बाद जो नेक्स्ट D और E है वो मिसिंग है। इन दोनों के बीच में D और E मिसिंग है। फिर इसके बाद अगला जो आ रहा है वो I आ रहा है, तो F के बाद G H मिसिंग है। ठीक है, I आ गया। फिर इसके बाद J K मिसिंग है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है वो MN मिसिंग है। इसका मतलब है कि इनमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर आप लास्ट को देख लें, लास्ट अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो इधर से शुरू कर देते हैं, राइट साइड से। ठीक है, R S T U एंड B। इसके बाद बाकी में कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू जो है वो किस में है, वो इस 17 में है। तो यहाँ पे या तो 15 वापस होना चाहिए, इनका 4 डिफरेंस 6 होगा, तो 21 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 21 नहीं है, 17 गिवन। इसका मतलब यह है कि दिस टर्म, द लास्ट टर्म जो यहाँ पर है 17 OR, दैट कैन नॉट बी फिट इन द given sequence. So correct option is what? That is A, because इसमें ये 17 OR नहीं आ सकता। ओके जी, तो इस टेस्ट में क्या था? There were 7 questions and I hope you would have understood the questions, the solutions and the procedure. Thank you very much and see you in another video which solves the next test. Please subscribe to